السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان افراد کی مذمت کی جو احتجاجی کسانوں کے تعلق سے بد زبانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ انہوں نے احتجاجی کسانوں سے اپیل کی کہ وہ زائدہ 2 ماہ سے جاری اپنا احتجاج ختم کر دے۔ وزیر اعظم نے کسانوں کو یقین دلایا کہ اقل ترین امدادی قیمت پر فصلوں کی خریدی جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیرونی ممالک سے اثر ڈالنے کی کوششوں کی مذمت کی اور اسے تباہ کن غیر ملکی آئیڈیالوجی قرار دیا۔ کسان یونین کے لیگل سیل نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن و کسانوں کی غیر قانونی حراست اور قومی دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی مقامات کو انٹرنیٹ سروس سے محروم کرنے کے بارے میں مکتوب تحریر کرتے ہوئے شکایت کی ہے۔ یہ لیگل سیل ان کسانوں کی نمائندگی کر رہا ہے جنہیں یوم جمہوریہ کے موقع پر پیش آئے تشدد سے ابھرے قانونی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ سنگھو، غازی پور اور ٹکری کے احتجاجی مقامات پر انٹرنیٹ سروسز منقطع ہے، جس کی وجہ سے حکام نے یہ بات بتائی کہ عوامی سلامتی کو برقرار رکھنے اور کوئی بھی ناگہانی صورتحال کو ٹالنے کے لیے ایسا کرنا پڑا ہے۔ اس اقدام کے علاوہ 26 جنوری کو 3 زرعی قوانین کے خلاف منعقدہ ٹریکٹر ریلی کے دوران احتجاجی کسانوں اور پولیس کے درمیان پیش آئی جھڑپ کے بعد سے 127 افراد کی گرفتاری کا معاملہ بھی باعث تشویش ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پارلیمنٹ میں خطاب کے بعد بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیٹ نے تعجب سے کہا کہ کسانوں نے MSP یعنی اقل ترین امدادی قیمت ختم کر دیے جانے کی بات کب کہی تھی۔ مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ MSP مستقبل میں بھی بدستور برقرار رہے گی۔ ٹکیٹ نے کہا کہ کسانوں نے ایسے قانون کی مانگ کی ہے جو MSP سے متعلق وضع کیا جائے۔ موجودہ طور پر اقل ترین امدادی قیمت طے کرنے کے نظام سے متعلق قانون بنایا جانا چاہیے، کیونکہ کسانوں کو اب تاجرین لوٹنے لگے ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے اسے سائیکلون امفان کے بعد ریاست کو معمولی فنڈز دینے پر ظالم حکومت قرار دیا اور کہا کہ گجرات کبھی بنگال پر حکمرانی کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ 16ویں ویسٹ بنگال اسمبلی کے آخری سیشن کے اختتامی روز اپنے خطاب میں ممتا نے اپوزیشن کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ انہوں نے علل حساب بجٹ پر غیر ضروری تنقید کی۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے کہا کہ ریاست کا محکمہ انٹیلیجنس ان الزامات کی تحقیقات کرے گا کہ حال ہی میں بعض اہم شخصیات پر کسان احتجاج کے سلسلے میں ٹویٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ کانگریس نے بعض مشہور شخصیات کے ٹویٹس کے سلسلے میں BJP کے رول کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد دیشمکھ نے ایک آن لائن پلیٹ فارم پر یہ اعلان کیا۔ مہاراشٹر کانگریس کے ترجمان سچن ساونت اور دوسرے پارٹی قائدین نے دیشمکھ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک میٹنگ کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا۔ دیشمکھ فی الحال کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے جانے کے بعد آئسولیشن میں ہیں۔ کئی اہم شخصیات بشمول کرکٹ اسٹار سچن تندولکر اور عظیم گلوکارہ لتا منگیشکر نے حال ہی میں انڈیا ٹوگیدر اور انڈیا اگینسٹ پروپیگنڈا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر مرکزی حکومت کی تائید کی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایودھیا کے دھنی پور گاؤں میں مسجد کی تعمیر کے لیے مختص اراضی کے خلاف دائر کردہ ایک پٹیشن مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت کے کیس کے فیصلے کے بعد یہ اراضی الاٹ کی گئی تھی۔ دہلی میں رہنے والی 2 بہنوں نے 3 فروری کو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ سے رجوع ہوتے ہوئے اس 5 ایکڑ زمین کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا، جو مسجد کی تعمیر کے لیے اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کو الاٹ کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد کی ستائش کی کہ جموں کشمیر میں DDC چناؤ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا ہے۔ صدر جمہوریہ کے خطبے پر تحریک تشکر کا جواب دیتے ہوئے مودی نے اپنے خطاب میں کشمیر کا موضوع بھی شامل کیا، جہاں سے غلام نبی آزاد کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ آپ کی پارٹی کانگریس اس تعریف کو مثبت جذبے سے دیکھے گی اور G23 تجاویز پر اطمینان کرتے ہوئے مخالفت کی غلطی نہیں کرے گی۔ گزشتہ سال کانگریس کے 23 ناراض قائدین بشمول آزاد نے صدر پارٹی سونیا گاندھی کو مکتوب تحریر کرتے ہوئے تنظیم میں تبدیلیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے کانگریس کے اسی داخلی معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات کو پیش کیا۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پایا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں کشمیر سے باقاعدہ ویزا لے کر پاکستان کا سفر کرنے والے لگ بھگ 100 نوجوان لاپتہ ہیں۔ ایک IPS عہدیدار نے بتایا کہ یا تو یہ لوگ واپس نہیں آئے یا واپسی کے بعد لاپتہ ہو گئے۔ یہ لوگ دہشت گرد تنظیموں کے سلیپر سیل کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ عہدیدار نے کہا کہ یہ بات عیاں ہے کہ جو بھی نوجوان پاکستان جاتا ہے ISI والے اس سے ربط پیدا کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو یا تو برین واش کر کے ٹریننگ دی جاتی ہے یا انہیں مخالف ہندو پروپیگنڈے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ان نوجوانوں کو واپس لانا ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ ہم کشمیری نوجوان کو پاکستان جانے سے نہیں روک سکتے، ہم صرف نظر رکھتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ انٹیلیجنس عہدیداروں نے امیگریشن عہدیداروں کے ساتھ مل کر واگا بارڈر اور نئی دہلی ایئرپورٹ پر نوجوانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی ہے۔ کرناٹک قانون ساز اسمبلی میں کانگریس پارٹی اور JDS کے احتجاج کے درمیان مخالف گوکشی بل ندائی ووٹ سے منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ بل اسمبلی میں پہلے ہی منظور ہو چکا ہے۔ JDS کے ارکان نے ایوان کے درمیان پہنچ کر احتجاج کیا اور بل کی کاپیاں پھاڑ کر کرسی صدارت کے قریب پھینک دی۔ پھر بھی کرناٹک قانون ساز کونسل میں مخالف گوکشی بل منظور کر لیا گیا ہے۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर की शाम ट्वीट किया है कि उन्होंने खित्ते के मसाइल और हमारी मुश्तरका तरजीहात पर गौर के लिए अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमने माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ हमारे ताउन को आगे बढ़ाने से इत्तेफाक किया। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडेन और मैं क़वायद पर मबनी आलमी निज़ाम के पाबंद हैं। हम हिंद बहरकाल के इलाके और इसके माहिर अमन और सलामती को आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजिक शराकत मजबूत करने के ख्वाह हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस या कोविड-19 ने हज 2020 को बैरूनी शहरियों के लिए नामुमकिन बनाया और एक साल बाद हज 2021 भी इस वबा के सबब कम अज़ कम बैरूनी बिलखुसूस हिंदुस्तानी शहरियों के लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इसका बड़ा सबब सल्तनत सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसों में इजाफा है। सऊदी हुकूमत ने ताज़ा कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र कई एहतियाती इक़दाम मुतारिफ कराए हैं, जिनके तहत हाल ही में कई ममालिक से आने वाले बैरूनी शहरियों के दाखिले पर आर्जी इम्तना आयद कर दिया गया है। बदकिस्मती से इन मुल्कों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। दीगर ममालिक में मिस्र, लिबनान, मुत्तहिदा अरब इमारात, फ्रांस, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और दीगर यूरोपीय व गैर यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुसलसिल तीसरे दिन भी हज़ारों अफराद ने मुल्क गर सतह पर मुजाहरे में हिस्सा लिया और इस दरमियान पुलिस ने मुजाहरीन को मुश्तरका करने के लिए पहली बार आंसू गैस के गोले दागे। इसके अलावा पानी की बौछार भी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में गुज़श्ता हफ्ते फौजी तख्ता पलटने और अवामी लीडर्स को गिरफ्तार किए जाने के बाद इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई थी। हज़ारों मुजाहरीन ने यकजा होकर मुजाहरा करना शुरू कर दिया। कुवैत में बढ़ते कोरोना मामलों के पेश नज़र पाबंदी मजीद सख्त करते हुए गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक कुवैत में आज से किसी भी गैर मुल्की को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, अलबत्ता सिफारती मिशन, सिफारतकारों, तिब्बी अमले को इस्तिस्ना हासिल होगा। पाबंदियों के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि पाबंदियों के साथ वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी रहेगी। 3 माह में 8 लाख कुवैतियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उधर अबू धाबी में नई कोरोना पाबंदियां आयद कर दी गई है। सिनेमा हॉल साहुकुम सानी बंद कर दिए गए हैं और तमाम तकरीबात और इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल अल शलहूब ने कहा है कि मुमलिकत में मुतालिका अथॉरिटी के जरिए सख्त इक़दाम नाफिज किए जा सकते हैं। जब तक अवाम कोरोना SOPs की पाबंदी करते रहेंगे तब तक कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम IPS और वक्फ बोर्ड के अरकान के दरमियान बहस छिड़ गई। कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय इन्हें तिजारती सरगर्मियों के लिए लीज पर देने से मुतालिक बोर्ड की करारदादों को मनसूख करने शाहनवाज कासिम ने अरकान से ख्वाहिश की, लेकिन बाज़ अरकान बोर्ड की करारदादों से दस्तबरदारी के हक़ में नहीं थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इख्तियारात के मसले पर भी गर्मा गर्म मबाहस हुए। शाहनवाज कासिम ने इजलास में वाज़ेह कर दिया कि जब तक 3 मुतनाज़ा फैसलों से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की जाती, इस वक्त तक वो एजेंडे के दीगर उमूर को मंजूरी नहीं देंगे। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इख्तियारात के तहत वो बोर्ड के फैसलों पर रोक लगाने का हक़ रखते हैं और एजेंडे की तैयारी उनका इख्तियार है, जो उमूर औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में रहेंगे, इन्हीं को शामिल किया जाएगा। बाज़ राय के मुताबिक शाहनवाज कासिम ने कोकापेट ख़बरस्तान और अफजलगंज ख़बरस्तान की अराज़ियात को लीज़ पर देने के अलावा दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली के तौर पर साबिक़ मुतवल्ली के फ़र्जंद के तक़र्रुर से मुतालिक फ़ैसलों पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ख़बरस्तानों की अराज़ी को तिजारती सरगर्मियों के लिए नहीं दिया जा सकता। बोर्ड के बाद अरकान ने अफजलगंज ख़बरस्तान में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर की तायीद की। शाहनवाज कासिम ने दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली के मुतवल्ली के तौर पर साबिक़ मुतवल्ली के फ़र्जंद के तक़र्रुर की, ये कहते हुए मुखालिफत की कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 24 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर-अल्तवा हैं और मुतवल्ली पर वक्फ अराज़ी फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम है। ऐसे में साबिक़ मुतवल्ली के फ़र्जंद का तक़र्रुर करने से वक्फ अराज़ी को ख़तरा लाहक़ हो सकता है। तेलंगाना हुकूमत ने माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के लिए तालीम और रोज़गार में 10% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए अहकाम जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने GO-MS 33 जारी किया। GO में कहा गया है कि दस्तूर की तरमीम के तहत माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात को आला तालीमी इदारों बशमुल खानगी इदारों में 10% तहफ़्फ़ुज़ात की गुंजाइश फराहम की जा रही है। इमदादी और गैर इमदादी इदारों में ये तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। इस फैसले के तहत SC, ST और BC तबक़ात के अलावा दीगर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे अफराद जो मुआशी तौर पर पसमानदा हैं, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे। गवर्नर तेलंगाना T. सौंदरराजन ने राजभवन के कम्युनिटी हॉल में अन्नम कैंटीन का इफ्तिताह किया। कैंटीन के जरिए राजभवन स्कूल के तलबा और सफाई वर्कर्स को रोज़ाना मुफ्त नाश्ता फराहम किया जाएगा। गवर्नर ने तलबा और सफाई अमले को नाश्ता पेश करते हुए इफ्तिताही रस्म अंजाम दी। गवर्नर ने तलबा और सफाई अमले के साथ बैठकर नाश्ता भी किया। कैंटीन के जरिए रोज़ाना मुफ्त तग़ज़िया बख्श नाश्ता सरबराह किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तेलंगाना KTR ने कहा कि तालीम और ज़रई शोबे के मामले में हुकूमत कोई समझौता नहीं करती। गरीब तलबा को कॉरपोरेट तर्ज की तालीम फराहम की जा रही है। किसानों को फसलों के लिए सरमायाकारी करने वाली तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है। अपने असम्बली हल्के सरसला में KTR ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुंतखब कॉरपोरेटर्स 11 फरवरी को हलफ लेंगे और इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जीएचएमसी के इलेक्शन ऑफिसर लोकेश कुमार ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को सुबह 10:45 पर तमाम नवमुंतखब कॉरपोरेटर्स को कौंसल हॉल में पहुंचने की हिदायत दी गई है। हर नवमुंतखब कॉरपोरेटर अपने साथ कोई एक शिनाख्ती कार्ड रखें जिस पर इनकी तस्वीर हो। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी के इजलास से मुतालिक क़ब्ल कॉरपोरेटर्स को इत्तला बज़रिए लेटर दी गई है। इसी दिन 11 बजे नवमुंतखब कॉरपोरेटर्स को हलफ दिलाया जाएगा। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगोंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से इन पर की गई तनकीदों की मजम्मत करते हुए चैलेंज किया कि बंडी संजय में अगर हिम्मत है तो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बदउनवानियों के खिलाफ सीबीआई तहकीकात करवाएं, जिस तरह के बंडी संजय बार बार चीफ मिनिस्टर की बदउनवानियों पर बयानात दे रहे हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुजूर नगर असेंबली हल्के के मानमपल्ली दरियाए कृष्णा के किनारे वाक़ है। जिस वक्त मैं इस हल्के से नुमाइंदगी करता था उस वक्त मैंने मानमपल्ली में सड़कें तामीर करवाई। जिला सूर्यापेट में पेश आए तशद्दुद के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने जहां सदर रियासती बीजेपी व एमपी करीमनगर बंडी संजय कुमार, पार्टी के रुकन असेंबली एम रघुनंदन राव और गोशामैल एमएलए राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सदर जिला बीजेपी सूर्यापेट भाग्या रेड्डी इन 6 अफराद में शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने यह बात बताई। कबायलियों की अराजी की तायीद के मसले पर कल जिले में मुनक़िदा एक प्रोग्राम पर तशद्दुद हुआ था। बीजेपी कारकुनों के मुबैना संगबारी में पुलिस के 3 अहदेदार जख्मी हो गए थे। इस वाक़े में पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। एक केस बंडी संजय कुमार, रघुनंदन राव और दीगर के खिलाफ मुख्तलिफ IPS दफात के तहत दर्ज किया गया है। दूसरा केस गैर मिजाज तौर पर इकट्ठा होना, मुतनाज़ा अराजी पर दिए गए वक्त के बाद भी प्रोग्राम जारी करना, खानगी अराजी में दखल अंदाजी करना, ट्रैफिक में खलल डालना और दीगर इल्ज़ामात के तहत केस दर्ज किया गया है।